Hello everyone. Now today we are discuss about class 11 biology chapter number 1 living world. इसमें हम सारे PYQ जो अभी तक आ चुके हैं एक ही PYQ को अच्छे से देखेंगे, तो लास्ट तक बनी रही। सबसे पहला PYQ जो 2008 में आया है, Which of the following is the correct definition of metabolism? Sum total of all physical reaction, sum total of all chemical reaction in a cell, energy producing reaction only, growth related reaction only. Correct option is option B, sum total of all chemical reaction in a cell. ये NCERT की ही लाइन है। NCERT में लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in living organism. So B is correct. Next, which property is common to both living and non-living things? Reproduction, growth, metabolism, consciousness. Correct option is option B, growth. Growth can occur in non-living object also by accumulation of matter. Non-living things भी grow कर सकते हैं मैटर के accumulation से. So this is a common property both living and non-living things. So B is correct. Next, जो कि 2010 में आया है, growth in multicellular organism occurs by increase in cell size only, deposition of materials, cell division, crystallization. Correct option is option C, cell division. Growth in living organism is internal and occurs due to cell division. NCERT की लाइन है. Next, जो कि 2011 में आया है, Which of the following is not an all inclusive characteristic of living organism? Metabolism, growth, reproduction, consciousness. Correct option is C, reproduction. Some living organisms like mules and sterile worker do not reproduce. So all metabolism, growth, consciousness are properties of living organism, but growth is not in all मतलब सारे characteristic inclusive हैं. Which of the following is not all inclusive characteristic of living organism? Is not underline कर लेना है, is not पर. Metabolism, growth, reproduction, consciousness. Correct option is option C, reproduction. Some living organisms like mules and sterile worker do not reproduce. So metabolism, growth, consciousness, these are characteristic of living organism, but reproduction is also characteristic of living organism, but some are not reproduce. Next, viruses are considered living in the host cell because they have DNA, can mutate, reproduce, so metabolism. 2012 में आया है क्वेश्चन. Correct option is option C, reproduce. Viruses reproduce only inside host cell and are inert outside. होस्ट सेल के अंदर लिविंग रिप्रोड्यूस करता है और लिविंग होता है, होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग रहता है. सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, एबिलिटी टू मूव. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एबिलिटी टू मेटाबोलाइज. एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस हम देख चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जैसे कि इम्यूल और स्टाइल वर्कर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. ग्रो भी हम देख चुके हैं, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों ही ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर के थ्रू, और लिविंग तो ग्रो करते ही हैं. एबिलिटी टू मेटाबोलाइज इज द ट्रू फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज होता ही है. नेक्स्ट, जो कि 14 में आया है, द टर्म स्पीसीज रिफर टू group of similar genera, group of organism capable of interbreeding, group of families, group of similar individuals.
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। हम एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, इसमें लिखा है कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट 2015 में आया है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। 2016 में आया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज। इसकी ट्रिक है, स्पीसीज़ ने जीनस की फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, फाइलम से किंगडम में आने को। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। स्पीसीज़ ने जीनस की फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, फाइलम से किंगडम में आने को। सो देखो कहाँ सही सीक्वेंस है, इधर से देखना है, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। स्पीसीज़ ने जीनस की फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, फाइलम से किंगडम में आने को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड हायरार्किकल अरेंजमेंट। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ गिविंग टू नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, binomial nomenclature. Each organism has two names, genus and species. The scientific name of mango is written as Mazifera indica, Mazifera indica, सब Mazifera indica, लेकिन देखते हैं कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल, सेकंड लेटर जो रहता है वो स्मॉल रहता है, और ये इटालियन लेटर होते हैं, इटालियन वर्ड में लेके जाते हैं। ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 19 में आया है, द बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, द सेकंड वर्ड्स रिप्रेजेंट्स जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। अभी देख चुके हैं, सेकंड वर्ड जो रहता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड वर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिक एड, स्पीसीज, जीनस, हर्बेरियम, क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक एड जो 20 में आया है ये क्वेश्चन, हर्बेरियम। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। नेक्स्ट 21 में आया, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ लिविंग प्लांट्स, प्रिजर्व एंड एनिमल स्पेसिमेन, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन सी, ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन सीड्स। नेक्स्ट 22 में आया, सिस्टमैटिक डील्स विथ ओनली नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओनली क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन ओनली। Correct option is option C, diversity and evolutionary relationships. Systematics includes identification, nomenclature, classification and evaluations. Next, तो 23 में आया है, the book containing information of plants of a particular area is called manual, flora, monograph, catalog. Correct option is B, flora. Flora contains information about plants of a specific region. Next 24 में आया, which of the following correctly represent genus and species? Panthera tigris, Felidae, Carnivora. Correct option is B, Panthera tigris. Panthera जो है वो जीनस है, टिग्रिस स्पीसीज है। Thank you to all.